فراموش نہیں کر سکتا۔ ہندوستان کی تاریخ میں پہلی بار اس روشن حقیقت کو لے کر حاضر ہیں ہم۔ دیکھیے ہماری خصوصی پیشکش صدائے حق، صرف چینل 1 نیوز پر۔ پل پل بدلتی سیاست، ہر پل بدلتے مدے، سڑکوں پر ابلتا آکروش، سنسد میں مچتا کوہرام اور ہلچل ستا کے گلیاروں کی۔ ہر خبر پر ہے ہماری نظر، کیونکہ اسے بننا ہے آپ کا ایجنڈا۔ دیکھیے نیوز لائن میرے ساتھ سوموار سے شکروار رات 8 بجے صرف چینل 1 نیوز پر۔ ناری پر ہو اب کوئی گھات، نہیں کریں گے ہم برداشت۔ بہت ہوئی سسکی اور ہچکی، اب ٹوٹی ہے اس کی چپی، بلند ہوئی اس کی آواز۔ خاموش کھڑا کیوں دیش سماج، بے خوف کہو تم حق کی بات۔ چینل 1 ہے تمہارے ساتھ۔ چینل 1 نیوز مہیلاؤں پر ہونے والے کسی بھی طرح کے اتیاچار کی نندا کرتا ہے اور ہر سمے ایسے اپرادھ کے خلاف آپ کی بلند آواز کے ساتھ ہے۔ تعلیم، روزگار، تربیت، تہذیب، سیاست اور ثقافت، ہم دکھاتے ہیں سارے مناظر۔ ہماری خاص پیشکش منظرنامہ پیر تا سنیچر دوپہر 12 بجے صرف چینل 1 نیوز پر۔ پل پل بدلتی سیاست، ہر پل بدلتے مدے، سڑکوں پر ابلتا آکروش، سنسد میں مچتا کوہرام اور ہلچل ستا کے گلیاروں کی۔ ہر خبر پر ہے ہماری نظر، کیونکہ اسے بننا ہے آپ کا ایجنڈا۔ دیکھیے نیوز لائن میرے ساتھ سوموار سے شکروار رات 8 بجے صرف چینل 1 نیوز پر۔ کربلا سے لوٹ رہے عقیدت مندوں پر خودکش حملہ، 30 زائرین شہید اور 50 سے زائد زخمی۔ خانہ جنگی کے شکار، شام کو تقسیم کا خطرہ، حزب اللہ کے سربراہ شیخ حسن نصر اللہ نے کیا خبردار۔ کویت کے 5 انتخابی حملوں میں نیا مسودہ لاگو کرنے کا فیصلہ، مسودے میں ناپسندیدہ حکم کے خلاف اپنی رائے دینے کا حق۔ عراقی نائب وزیر اعظم صالح المطلق نے سرکار پر مستعفی ہونے کا کیا مطالبہ، استفادے کے بعد عراق میں کرائے جائیں گے انتخابات۔ آداب، میں ہوں شمع پروین، پیش خدمت ہے ہمارا خاص بلیٹن خبر خلیج۔ اپنی اس خاص پیشکش کے ساتھ ہم روبرو ہوتے ہیں خلیجی ممالک سے جڑی اہم خبروں کے ساتھ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ عراق کے دارالحکومت بغداد کے جنوب میں حکام کے مطابق ایک کار بم دھماکے میں کم سے کم 20 زائرین ہلاک اور 30 لوگ زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ دھماکہ پارکنگ میں کھڑی ایک کار میں اس وقت ہوا جب زائرین مقدس مقام کربلا سے واپس آ رہے ہیں۔ زائرین کے مطابق ایک خودکش حملہ نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ عراقی پولیس کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ دھماکہ ایک بس اسٹاپ کے قریب ہوا جہاں کربلا سے واپس آنے والے زائرین دوسرے شہروں کو جانے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ عراقی پولیس کے مطابق حملہ ہونے والے میں بچے بھی شامل ہیں۔
मिस्र के सदर अहमदुल जन ने क्लब की एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में दो टूक अल्फाज में वाज़ेह किया है कि अदालती बिरादरी के मौक़िफ़ में किसी किस्म की तब्दीली नहीं आई है और न ही हम अपने मुतालबात से दस्तबरदार होंगे। उन्होंने कहा कि मिस्री अदलिया अपनी आज़ादी और इत्तेहाद का तहफ़्फ़ुज़ करती रहेगी। याद रहे कि हिज़्ब क्लब अदलिया की आज़ादी के लिए दबाव डालने की खातिर गुज़िश्ता एक माह से जुज़वी हड़ताल पर थे। हिज़्ब क्लब में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अल-जन ने कहा कि जो लोग समझते हैं कि वक्त गुजरने के साथ हिज़्ब मुल्क व कौम की खातिर अपने मकासद से हट जाएंगे, उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। हम अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। मीज़ान अदल उठाने वालों को डराया या धमकाया नहीं जा सकता। हिज़्ब क्लब के सरबराह ने कहा है कि मिस्री अवाम को अदलिया पर हमेशा एतमाद रहा है और हमेशा ही रहेगा। यह एतमाद हमारा सरमाया है। इराक़ी हुक्काम की इत्तला के मुताबिक दारुल-हुकूमत बगदाद से 60 किलोमीटर जुनूब में वाक़े कस्बे मुसय्यब में शिया ज़ायरीन को बम हमले का निशाना बनाया गया। वो जुनूबी शहर करबला में शोहदाए करबला के चहल्लुम के सिलसिले में मुनक़्क़दा तक़रीबात में शिरकत के बाद वापस पहुँचे थे। मुसय्यब के बस अड्डे में बारूद से भरी कार को जुमेरात की दोपहर धमाके से उड़ाया गया। उस वक्त ज़ायरीन करबला से आने वाली बसों से उतरकर दूसरे शहरों को जाने वाली बसों में सवार हो रहे थे। पुलिस ने बम धमाके में 20 अफराद की हलाकत की तस्दीक की है और कहा है कि इनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। जख्मियों को मुसय्यब के अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। इराक़ी हुक्काम की इत्तला के मुताबिक दारुल-हुकूमत बगदाद से 60 किलोमीटर जुनूब में वाक़े कस्बे मुसय्यब में शिया ज़ायरीन को बम हमले का निशाना बनाया गया। वो जुनूबी शहर करबला में शोहदाए करबला के चहल्लुम के सिलसिले में मुनक़्क़दा तक़रीबात में शिरकत के बाद वापस पहुँचे थे। मुसय्यब के बस अड्डे में बारूद से भरी कार को जुमेरात की दोपहर धमाके से उड़ा दिया गया। उस वक्त ज़ायरीन करबला से आने वाली बसों से उतरकर दूसरे शहरों को जाने वाली बसों में सवार हो रहे थे। पुलिस ने बम धमाकों में 20 अफराद की हलाकत की तस्दीक की है और कहा है कि इनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। जख्मियों को मुसय्यब के अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बम धमाका इस कदर शदीद था कि उसमें मुतादिद कारें, बसें और करीबी मकानात तबाह हो गए। धमाके के बाद हर तरफ अफरा तफरी फैल गई और ख़वातीन हवास बाख्तगी के आलम में अपने बच्चों को इधर उधर तलाश करती देखी गई। फौरी तौर पर किसी ग्रुप ने इस कार बम हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। लेबनान की शिया मिलिशिया हिज़्बुल्लाह के सरबराह शेख हसन नसरुल्लाह ने एक नसरी तकरीर में खबरदार किया है कि खाना जंगी का शिकार शाम को तकसीम की स्कीमों का खतरा है। उन्होंने कहा है कि हम बुनियादी और नज़रियाती तौर पर किसी भी इस्लामी मुल्क की तकसीम के खिलाफ हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा इजराइल जैसी कातिल क़ुव्वतों को पहुँचेगा। दूसरी जानिब शेख हसन नसरुल्लाह ने खित्ते की तमाम ताकतों पर जोर दिया है कि वो अपने इत्तेहाद को बरकरार रखें। साथ ही उन्होंने शाम में अमरीकी और अमरीकी परस्त सऊदी हुकूमत की मदाखलत की भी तनकीद का निशाना बनाया। पेश है एक खास रिपोर्ट। खाना जंगी के शिकार शाम को तकसीम की स्कीमों का खतरा है। इन्हीं ख्यालात का इजहार लेबनान की शिया मिलिशिया हिज़्बुल्लाह के सरबराह शेख हसन नसरुल्लाह ने एक नशरी तकरीर में किया। उन्होंने कहा कि हम बुनियादी और नजरियाती तौर पर किसी भी इस्लामी मुल्क की तकसीम के खिलाफ है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा फायदा इजराइल जैसी बातिल कुव्वत को पहुंचेगा। दूसरी जानिब शेख हसन नसरुल्लाह ने खित्ते की तमाम ताकतों पर जोर दिया कि वो अपने इत्तेहाद को बरकरार रखें। साथ ही उन्होंने शाम में अमेरिका और अमेरिकी परस्त सऊदी हुकूमत की मुदाखलत को भी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने मजीद कहा कि यमन से इराक और वहां से शाम तक इस पूरे खित्ते को पहले से कहीं ज्यादा तकसीम के खतरे का सामना है। हत्ता कि मिस्र, लीबिया और सऊदी अरब को भी तकसीम का खतरा मौजूद है। शेख हसन नसरुल्लाह का कहना था कि हम लेबनान और खित्ते में खतरनाक मरहले से गुजर रहे हैं, साथ ही हम कशीदगी के माहौल में रह रहे हैं। उन्होंने अपनी तकरीर में मगरबी और अरब हुकूमतों को लेबनान में शामी मुहाजिरीन की सैलाब की तरह आमद का जिम्मेदार करार दिया है, जो उनके बकौल शाम की हिज़्ब इख्तिलाफ को मुसल्लह करने के जिम्मेदार है। वाज़ेह रहे शेख हसन नसरुल्लाह लेबनान की मकबूल तंजीम हिज़्बुल्लाह के सरबराह है। हालांकि 2006 में इजरायली फौज का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हिज़्बुल्लाह की मकबूलियत सभी इस्लामी मुल्कों में बढ़ गई थी।
साथ ही लोगों की बड़ी तादाद हसन नसरुल्लाह को एक हीरो की तरह तस्लीम करते हैं। यही वजह है कि हिजबुल्लाह की मकबूलियत में आज भी किसी तरह की कोई कमी नहीं आई है। वाज़ेह है इजराइल जैसी बातिल कुव्वत के खिलाफ खित्ते की दो बड़ी तंजीमें पंजा आजमाई कर रही है, जिनमें फिलिस्तीनी तंजीम हमास और लेबनानी तंजीम हिजबुल्लाह सर फहरिस्त है। हमास सुन्नी मुसलमानों की तंजीम है, जबकि हिजबुल्लाह में ज्यादातर शिया मुसलमान हैं। लेकिन खास बात यह है कि दोनों तंजीमों को शिया मुल्क ईरान की हिमायत हासिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। कुवैत में कानून साजी ने 5 इंतखाबी हलकों में नया मसौदा लागू करने का फैसला किया है। नया इंतखाबी मसौदा एक आईनी अदालत की जानिब से है। नए इंतखाबी कानून के मुताबिक नापसंदीदा हुक्म के खिलाफ अपनी राय देने का हक भी होगा। साथ ही इस मसौदे में मुताबिक इंतखाब का बाइकआउट भी किया जा सकता है। हालांकि कुवैत में आवाम की बड़ी तादाद ने इस कानून पर रजामंदी का इजहार किया है, जबकि इस मसौदे पर कुवैती पार्लिमानी की मुहर लगना अभी बाकी है। इराक़ी नायब वज़ीर आज़म सालेहुल मुतलक ने सरकार पर मुस्तफ़ी होने का मुतालबा किया है। उन्होंने मुतालबा किया है कि नूरी अल-मालिकी के इस्तीफ़े के बाद इराक़ में क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात कराए जाएँ। बक़ौल सालेहुल मुतलक ने ये इंतख़ाबात गैर जानिबदाराना उबूरी हुकूमत कराए। पेश है एक ख़ास रिपोर्ट। इराक़ी नायब वज़ीर आज़म सालेहुल मुतलक ने हुकूमत से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा किया है। उन्होंने मुतालबा किया है कि नूरी अल-माल के इस्तीफ़ा के बाद इराक़ में क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात कराए जाएँ। बक़ौल सालेहुल मुतलक ये इंतख़ाबात गैर जानिबदारी उबूर हुकूमत कराए। उबूरी हुकूमत में मुल्क की मौजूदा सियासी क़यादत का कोई फ़र्द शामिल न हो और न ही वज़ीर आज़म नूरी अल-माल की पेश आइंद इंतख़ाबात में उम्मीदवार हों। इन ख़यालात का इजहार इराक़ी रहनुमा ने फ्लैगशिप प्रोग्राम पॉइंट ऑफ ऑर्डर में इजहार ख्याल करते हुए किया। उन्होंने नूरी अल-मालिकी को डिक्टेटर करार देते हुए कहा कि वो अपनी रविश नहीं बदलेंगे। सालेहुल मुतलक ने इराक़ी वज़ीर मालियात राफ़िउल ईसावी के मुहाफ़िज़ों को मुसल्लह अफराद के हाथों गिरफ्तारी के वाक़ये को गैर कानूनी और गैर अखलाक़ी करार देते हुए कहा कि मुल्की अदालतों के बाज़ फैसले शफ़ाफ़ नहीं हैं। इसी असना में इराक़ी वज़ीर आज़म नूरी अल-मालिकी ने अपनी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी धरना देने वाले मुज़ाहिरीन को मुखातब करते हुए कहा, ये वक्त आपकी कामयाबी का नहीं है। इससे उनकी मुराद ये थी कि उनकी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे ख़त्म किए जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। मिस्र में अटॉर्नी जनरल तलत अब्दुल्ला के अपने ओहदे पर बरकरार रहने के खिलाफ मुल्क भर में प्रोसिक्यूशन दफातर 8 जनवरी से 10 जनवरी 3 दिन के लिए काम बंद कर रहे हैं। हज़रत क्लब मिस्र के सदर अहमद अल-अज़द ने क्लब की एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में 2 टुक अल्फाज में वाज़े किया है कि अदालती बरादरी के मौक़िफ़ में कोई बदलाव नहीं आया है और ना ही अपने मुतालबात से दस्तबरदार होंगे। पेश है एक ख़ास रिपोर्ट। हिज क्लब मिस्र के सदर अहमद अल-अज़द ने क्लब की एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में 2 टुक अल्फाज में वाज़े किया है कि अदालती बरादरी के मौक़िफ़ में किसी किस्म की तब्दीली नहीं आई है और न ही हम अपने मुतालबात से दस्तबरदार होंगे। उन्होंने कहा कि मिस्री अदलिया अपनी आज़ादी और इत्तेहाद का तहफ़्फ़ुज़ करती रहेगी। याद रहे कि हिज क्लब अदलिया की आज़ादी के लिए दबाव डालने की खातिर गुज़िश्ता 1 माह से जुज़वी हड़ताल पर थे। हिज क्लब में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अल-अज़द ने कहा कि जो लोग समझते हैं कि वक्त गुजरने के साथ हिज मुल्क व कौम की खातिर अपने मकासद से हट जाएंगे, उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। हम अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। मीज़ान अदल उठाने वालों को डराया या धमकाया नहीं जा सकता। हिज क्लब के सरबराह ने कहा है कि मिस्री अवाम को अदलिया पर हमेशा एतमाद रहा है और हमेशा ही रहेगा। यह एतमाद हमारा सरमाया है। हम अवाम के लिए लड़ते रहेंगे, चाहे उसकी हमें कितनी ही बड़ी कीमत अदा क्यों न करनी पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। इराक के जनूबी शहर मुसैयब में एक बस अड्डे पर कार बम धमाके में 20 शिया ज़ायरीन हलाक और 50 से ज़्यादा जख्मी हो गए हैं। इराकी हुक्काम की इतला के मुताबिक दारुल हुकूमत बगदाद से 60 किलोमीटर जनूब में वाक़ शहर मुसैयब में शिया ज़ायरीन को बम हमले में निशाना बनाया गया। पेश है एक ख़ास रिपोर्ट। चहलू में इमाम हुसैन में शिरकत करके लौट रहे ज़ायरीनों को इस साल भी बम धमाकों का निशाना बनाया गया।
इराक के दारुल हुकूमत बगदाद के जुनूब में हुक्काम के मुताबिक एक कार बम धमाके में कम से कम 20 ज़ायरीन हलाक और 30 लोग जख्मी हो गए। ये धमाका पार्किंग में खड़ी एक कार में उस वक्त हुआ जब ज़ायरीन मुकद्दस मकाम करबला से वापस आ रहे थे। ज़राए के मुताबिक एक खुदकुश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। इराकी पुलिस के हवाले से बताया गया है कि यह धमाका एक बस स्टॉप के करीब हुआ, जहां करबला से वापस आने वाले ज़ायरीन दूसरे शहरों को जाने के लिए जमा होते ही इराकी पुलिस के मुताबिक हलाक होने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि इस मौके पर अक्सर बम धमाकों के वाक़यात सामने आते हैं। ज़राए के मुताबिक इस साल भी हर साल की तरह इराक के पाक शहर करबला में लाखों की तादाद में लोगों ने शिरकत की, जिनमें तकरीबन 135 ममालिक के लोग शामिल थे। वहीं ईरानी खबर एजेंसी महर के मुताबिक इराक के मुख्तलिफ शहरों से भी लोगों ने काफिलों की शक्ल में करबला के चहलुम में शिरकत की। हालांकि वहाबी और सलफी दहशतगर्दों के खतरे को देखते हुए हिफाजत के सख्त इंतजाम किए गए थे। इसके बावजूद दहशतगर्द ज़ायरीन इमाम हुसैन पर हमला करने में कामयाब हो गए। वहीं इराकी हुक्काम की जानिब से इन हमलों के लिए वहाबी दहशतगर्दों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि इराक और ईरान में मुहर्रम के महीने से शुरू होकर मजालिसों का सिलसिला 10 मुहर्रम के 40 दिन बाद यानी चहलुम पर इख्तिताम पसीर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। फ्रांस के एक जज को बताया गया है कि साबिक सदर निकोलस सरकोजी ने लीबिया के मकतूल सदर मुअम्मर कज़ाफ़ी से 5 करोड़ यूरो से ज़्यादा रकम वसूल की थी। लेबनान ने ताल्लुकात रखने वाले एक कारोबारी शख्सियत ज़्यादा ताकिदुन ने फ्रांस के तफ्तीशी जज को बताया कि कर्नल कज़ाफ़ी और उनके एक बेटे ने गैर कानूनी तौर पर निकोलस सरकोजी को 5 करोड़ यूरो से ज़्यादा रकम मुंतकिल की थी और उनके पास इसके तहरीरी सबूत मौजूद हैं। शाम के दारुल हुकूमत के नवा में बागियों के ज़ेरे कब्ज़े इलाके में अज़दी ने हवाई हमला किया है, जिसके नतीजे में कम से कम 30 शहरी हलाक और 20 जख्मी हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क मार्च 2011 से जारी रवाना में 60,000 से ज़्यादा मारे गए हैं। शामी कारकुनान की इत्तला के मुताबिक सरकारी फौज के जंगी तैयारे ने दमिश्क के नवाही इलाके अल-मलीहा में एक पेट्रोल स्टेशन पर बमबारी की, जिससे वहां मौजूद अफराद जिंदा जल गए। सईद नामी एक कारकुन ने बताया कि रूसी मिग तैयारे ने पेट्रोल स्टेशन पर मिसाइली हमला किया। बताया जाता है कि जंगी तैयारे ने पेट्रोल स्टेशन पर ईंधन की आमद के बाद वहां खड़े लोगों को निशाना बनाया। उस वक्त मोटरसाइकिल सवार और कार सवार पेट्रोल लेने के इंतजार में कतारों में खड़े थे। बमबारी के बाद पेट्रोल स्टेशन पर आग लग गई और वहां खड़े लोग उसकी लपेट में आ गए। शामी फौज का गुज़िश्ता कई हफ्तों के बाद ये सबसे तबाहकुन हमला है। अल-मलीहा के इलाके में अहले सुन्नत अक्सरियत में आबाद हैं और इस इलाके में सदर बशार अल-असद के मुखालफिन का असर और रसूख है, जबकि शामी सदर की वफादार फोर्सेस का दमिश्क के वस्ती इलाके में ही कंट्रोल रह गया है। आज शाम के दूसरे इलाके में सरकारी फौज और बागी जंगजुओं के दरमियान झड़पों और तशद्दुद के वाक़यात में 100 से ज्यादा अफराद हलाक हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी जारी करदा एक नई रिपोर्ट में कहा है कि शाम में गुज़िश्ता 21 माह से जारी खाना जंगी में 60,000 से ज्यादा अफराद मारे गए हैं और हर माह शामियों की हलाकतों में इजाफा हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत आज़ाद माहिरीन ने 7 मुख्तलिफ ज़राए के शाम में जारी खाना जंगी में हलाकतों के फराहम करदा आदाद व शुमार का तज्ज़िया किया। इन ज़राए ने 1,47,349 हलाकतों की इत्तला दी थी। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक दफ्तर की जानिब से कायम करदा कमीशन इन हलाकतों के जायजे के बाद इस नतीजे पर पहुंचा है कि शाम में 15 मार्च 2011 से 30 नवंबर 2012 तक तकरीबन 60,000 अफराद तशद्दुद के वाक़यात में मारे गए हैं। इन तमाम मक़तूलीन के नाम, पते और उनकी मौत की तफसील सब मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। अब देखते हैं कुछ दिगर खबरें। महाराष्ट्र इंसदादे दहशतगर्द दस्ते की औरंगाबाद की एक अदालत ने सरजनिश की और नांदेड़ से गुज़िश्ता दहशतगर्दी के इल्ज़ामात के तहत गिरफ्तार किए गए 4 मुस्लिमी नौजवानों के खिलाफ
دہشت گردی کی دفعات استعمال کیے جانے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ایک دن کے اندر عدالت میں ثبوت مہیا کرانے کا حکم جاری کیا ہے۔ واضح ہے کہ اے ٹی ایس نے ناندیڑ سے 4 مسلم نوجوانوں کو گرفتار کیا تھا۔ انسداد دہشت گرد دستے کی آج یہاں اورنگ آباد کی ایک سیشن عدالت نے سرزنش کی اور مہاراشٹر کے ناندیڑ ضلع سے گزشتہ دنوں دہشت گردی کے الزام کے تحت گرفتار کیے گئے 4 مسلم نوجوانوں کے خلاف دہشت گردی کی دفعات استعمال کیے جانے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ایک دن کے اندر عدالت میں ثبوت مہیا کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ ایڈیشنل جج سیگاونکر کے روبرو آج دفاع اور استغاثہ نے اس سلسلے میں گرفتار کیے گئے ایک ملزم الیاس کی درخواست ضمانت پر اپنی بحث کا اختتام کیا، جس کے بعد عدالت نے سرکاری وکیل سے یہ دریافت کیا کہ تحقیقاتی دستوں نے ملزم کے خلاف دہشت گردی کا جو مقدمہ کیا ہے کہ آیا اس کا کوئی ثبوت عدالت میں پیش کر سکتے ہیں۔ سرکاری وکیل موگدیا نے اس موقع پر معذوری کا اظہار کیا اور عدالت سے وقت طلب کیا، جس پر عدالت نے استغاثہ کو ایک دن کے اندر ملزم کے خلاف ثبوت کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ جمعیت علماء مہاراشٹر کی جانب سے ان ملزمین کو مفت قانونی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ ملزمین کی پیروی کرتے ہوئے جمعیت کے قانونی مشیر ایڈوکیٹ خضر پٹیل نے ملزم الیاس کی درخواست ضمانت پر بحث کرتے ہوئے عدالت کو بتایا تھا کہ ملزم الیاس سمیت دیگر ملزمین پر تحقیقاتی ایجنسیوں نے جن دفعات کا اطلاق کیا ہے وہ سراسر غلط ہے، کیونکہ ملزمین کے خلاف جو معاملہ تیار کیا گیا ہے اور جو ثبوت فراہم کیے گئے ہیں اس پر ان دفعات کا اطلاق غیر قانونی اور غیر آئینی ہے۔ ایڈوکیٹ پٹیل نے عدالت کو مزید بتایا کہ ملزمین پر یہ الزام عائد ہے کہ وہ لشکر طیبہ اور حرکت مجاہدین جیسی جنگجو اسلامی تنظیموں سے ربط و ضبط میں تھے، لیکن قانون کے مطابق استغاثہ یہ ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے کہ ملزمین میں سے کسی ممنوع تنظیم سے کسی کا تعلق ہے۔ نیز ان دفعات کا استعمال اسی وقت کیا جا سکتا ہے جب ملزمین ممنوع تنظیم کے رکن ہوں۔ وکیل دفاع نے سپریم کورٹ سمیت ممبئی ہائی کورٹ کے متعدد حکم ناموں کو بھی عدالت میں پیش کیا تھا اور یہ دلائل پیش کیے تھے کہ ملزمین کی گرفتاریاں ہی غیر قانونی ہیں۔ بیورو رپورٹ، چینل 1 نیوز۔ جمعیت العلماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے دعویٰ کیا ہے کہ آسام میں اس وقت تقریباً 65,000 مظلوم مسلمان کیمپوں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں جو خالص ہندوستانی ہیں اور ان کے پاس ہندوستانی ہونے کے سارے ثبوت موجود ہیں۔ مولانا نے آسام کے مسائل پر واضح داخلے سشیل کمار شنڈے کی خصوصی ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ آسام میں فرقانہ واردات کے دوران 5 لاکھ مسلمان بے گھر ہوئے تھے، جن میں سے تقریباً 65,000 مسلمان اب بھی کیمپوں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ دراصل حکومت کو یہ اطلاع دی گئی ہے کہ سارے مسلمان گھر لوٹ گئے ہیں، ان کی باضابط کاری کی ضرورت ہے۔ ملک کے اکثریتی فرقے کے خلاف اشتعال انگیز بیان دینے کے الزام میں ملزمین اتحاد المسلمین کے سکول اسبری اکبر الدین اویسی کے خلاف دوسری FIR درج کی گئی ہے۔ اکبر الدین اویسی کے خلاف عدالت کے حکم نامے پر دوسری FIR درج کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ عدالت نے اس معاملے کی جانچ کرنے اور 28 جنوری تک اس بارے میں تفصیلی رپورٹ داخل کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت کے حکم نامے پر عمل و آوری کرتے ہوئے اکبر الدین اویسی کے خلاف پولیس نے دفعہ 153A کے تحت معاملہ درج کیا ہے۔ یہی اکبر الدین اویسی علاج کی غرض سے اس وقت لندن کے دورے پر ہے۔ واضح رہے کہ 24 دسمبر 2012 کو اویسی نے اکثریتی فرقے کے خلاف اشتعال انگیز بیان دیا تھا۔ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے حضرت امام حسین اور ان کے 72 ساتھیوں کی یاد میں چہلم کی مناسبت سے پٹنہ سٹی کے بولی موڑ امام باڑے سے جلزنہ کا جلوس نکالا گیا، جو مختلف راستوں سے ہوتا ہوا نوجرہ کٹرا کے مقیم امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوا۔ ساتھ ہی اس موقع پر عقیدت مندوں نے سینہ زنی اور لوحہ خوانی کے ذریعے امام حسین کو خراج عقیدت پیش کی۔ چہلو میں امام حسین کی مناسبت سے پٹنہ سٹی کے بولی موڑ امام بارگاہ سے زلجنہ یعنی دلدل کا جلوس نکالا گیا۔ دراصل زلجنہ اس گھوڑے کو کہا جاتا ہے جو گھوڑا امام حسین کے گھوڑے سے منسوب کر دیا جاتا ہے۔
इमाम हुसैन को घोड़ा उनके नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोहफे में दिया था, जो करबला की जंग में इमाम हुसैन के साथ था। उसी घोड़े से निस्बत देकर शबी के तौर पर मुहर्रम के जुलूसों में दिगर घोड़े निकाले जाते हैं। वाज़ेह रहे इमाम हुसैन का घोड़ा बहुत वफादार था। वो भी 3 दिन तक इमाम हुसैन और उनके घर वालों के साथ भूखा प्यासा रहा और आखिर तक इमाम हुसैन की खिदमत करता रहा। लेकिन इमाम हुसैन के शहीद होने के बाद वो घोड़ा कहाँ गायब हो गया, ये आज तक राज है। चहलुम के मौके पर भी सब जगह जुलूसों और मजलिसों का सिलसिला जारी रहता है। वाज़ेह रहे चहलुम इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की शहादत के 40 दिन बाद मनाया जाता है। इस दिन अकीदतमंद नौह और मातम के जरिए इमाम हुसैन को खिराज अकीदत पेश करते हैं। साथ ही मातम के जरिए अकीदतमंद इमाम हुसैन को दिए गए जख्मों का एहसास करने की कोशिश भी करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। और खबरें खलीज में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए चैनल 1 न्यूज़। आप चैनल 1 न्यूज़ इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन करिए www.channel1.co.in। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ PACL इंडिया लिमिटेड। PACL में ग्राहकों का हित सुरक्षित, कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम। आधिकारिक तौर पर पुष्टि। मकसद वजूदे कायनात। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया, लेकिन वो आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जला नहीं सकी। मिटा दो अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। किसी आवाज को नहीं सुन रहे? कौन सी आवाज? किसी बच्चे की आवाज।